حاضرین عشاقان مصطفیٰ، میں جام برادران کو اس حسین محفل سجانے پر مبارک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آقائے کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی یہ حسین محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزت میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس محفل میں عشاقان حبیب حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے مقدس کلام سے جو آیے کریمہ اس عاجز ناچیز نے تلاوت کی، اس آیے کریمہ کے اندر رب کائنات اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ جیسے روبرو اور دوبدو کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے، اس طرح خالق اکبر، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اور رب کائنات فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، اور البت جلد عطا فرمائے گا تیرا رب اے حبیب تجھ کو۔ محبوب تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا، فترضیٰ، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میری طرف؟ میرے محبوب، میرے حبیب، تیرا رب تجھے عطا کرے گا، تجھے دے گا۔ کیا دے گا؟ کتنا دے گا؟ کس انداز سے دے گا؟ دینے کے انداز جدا ہوتے ہیں نا۔ کوئی چیز گن گن کر دی جاتی ہے، کوئی چیز ناپ کر دی جاتی ہے، کوئی چیز تول کر دی جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی کو زمین دیتے ہیں تو وہ تول کر نہیں دیتے، وہ ناپ کر دیتے ہیں۔ کپڑا دیتے ہیں، اس کا انداز اپنا ہے۔ سونا دینے کی ترازو جدا ہوتی ہے، اناج تولنے کی ترازو جدا ہوتی ہے، دینے کے انداز جدا ہوتے ہیں، دینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور دینے کے برتن جدا جدا ہوتے ہیں۔ کوئی چیز گن کر دیتے ہیں، کوئی تول کر دیتے ہیں، کوئی ناپ کر دیتے ہیں۔ میرے حبیب، تیرا محبوب تجھے تیرا رب دے گا، لیکن کس طرح دے گا؟ کس انداز سے دے گا؟ تول کر دے گا؟ ناپ کر دے گا؟ کس طرح دے گا؟ رب کائنات نے فرمایا فَتَرْضَىٰ، جس میں تو راضی ہو جائے گا، اس طرح دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ بھائی بول تو ایسے رہو جیسے ناشتہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اتنا یہ اسٹیج کے جو ماشاءاللہ بہت آپ کی نقابت پسند آئی مجھے، اتنا آپ کو کرم کیا، لیکن آپ کو ابھی تک سبحان اللہ نہیں نکل رہی۔ ذرا بولیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ مجھے بھی دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے، جان صاحب والوں کو بھی دیا ہے، لیکن ہر ایک کو دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ ہر کو دیتا ہے اپنی مرضی سے۔ آپ سے کبھی رب نے پوچھا نہیں کہ کتنا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھے تو آپ تو کہیں گے کہ یہ نور سارا مجھے ملنا چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ تو کہیں گے کہ یہ میئرشپ خانپور کی اور رحیم یار خان کی مجھے ملنی چاہیے۔ انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں، انسان کی بھوک مٹنے والی نہیں۔ یہ آنکھوں کے پیالے کھلے ہیں نا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ آنکھ
तमा वाले प्याले भरने वाले नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह देता है लेकिन अपनी मर्जी से देता है। बेशक बेशक अगर महबूब को दे, अपनी मर्जी से दे, तो फिर महबूबियत कैसी? जी, अगर हमें दे, अल्लाह अपनी मर्जी से दे, और महबूब को दे, अल्लाह अपनी मर्जी से दे, फिर हम में और महबूब में फर्क क्या ठहरा? हमें देता है अपनी मर्जी से, महबूब को देता है महबूब की मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फर्क है। अब लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसा था, हमारे जैसा है। मेरे दोस्तों, इनके मुंह में धूल हो जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। अरे नबी की तो ये शान है कि रब्बे कायनात फरमाते हैं, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब तुझे इतना दूं, इतना दूं, इतना दूं, देता रहूं, इतना दूं कि तू राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिन लदुनिल अर्शे इला तहत सरा यतलुबून रज़ाई व अना अतलुब रज़ाक या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब अर्शे मुअल्ला से लेकर तहत सरा तक, ये जो 14 तबक हैं, 7 आसमान, 7 जमीनें, जो कुछ भी कायनात में है, वो सब मेरी रजा चाहते हैं, मुझे राजी करना चाहते हैं, और मेरी चाहत है कि तू राजी हो। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, रब्बे कायनात ने फरमाया कि वाला सौफ युतीक, तेरा रब तुझे देगा। युतीक ये मुजारे है। जमान तीन हिस्सों में तकसीम है। जमाना 3 हिस्सों में, एक है माजी, एक है हाल, एक है मुस्तकबिल। माजी जो गुजर चुका, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल जो आने वाला है। मसलन ये फूल है, मेरे हाथ में है, अब मेरी मिल्कियत है, मेरे हाथ में है। ये फूल मैंने हजरत को दे दिया। अब क्या कहूंगा कि मैंने फूल दे दिया, सैयद को फूल दे दिया, इसके हवाले कर दिया। अब ये किस्सा माजी हो गया, क्योंकि दे दिया, इसके हवाले कर दिया। अब ये दूसरा फूल है, मैं नकीब मजलिस को देता हूं। अभी ठहरे, अभी जमान हाल है, अभी आपका हाथ मेरा हाथ, अभी देता हूं, अभी दिया नहीं। फूल मेरे हाथ में है, अभी देता हूं, देने लगा हूं, ये हाल है। अभी ये दे दिया, अब ये फिर माजी हो गया। जो हाल था वो माजी हो गया। अब ये तीसरा फूल है, ये मेरे पास है, ये दूंगा। हजरत को क्या नाम है इसमें? अब्दुल रहीम सईदी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं सईदी पर। हाय हाय, पूरे मुल्क में जहां जाओ सईदी फैज नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब ये फूल मेरे हाथ में है, मैं ये फूल दूंगा, हजरत सईदी को दूंगा। अभी दिया नहीं, फूल मेरे हाथ में, दूंगा जब जी में आए। बोलो, मेरी मर्जी है, दूंगा। ये मेरी मशीयत पर है कि जब दूं, जितना दूं, जैसे दूं, ये मेरी मर्जी है। ये है मुस्तकबिल। अजीजान गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह ने दे भी दिया, दे भी रहा है, और अभी देगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जंग जोल ठहार अब आखिरी ता है मुल्क तेरा मुख्तियार जो है। चौथी लाइन तेरा हाथ पूरे चाहते साया गुड़े छे या दूर दी शफात ते मारे सागु शायरा दे। जंग जोल ठहार अब आखिरी ता है मुल्क तेरा मुख्तियार जो है। ते को हर छे जानी वाथड़िया सा तू हर एक दा सरदार जो है। करा जफर मैं क्या को जानता है तू, करा क्या लेखे तू यार जो है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, इन्ना आतोइना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर दे दी। सुभान अल्लाह। अब कौसर हमने तो यही सुना है कि कौसर वो नहर है, जन्नत में नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, सुभान अल्लाह। मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है और बर्फ से ज्यादा शफाफ है। वो नहरे कौसर है। फिर एक हौज़े कौसर भी है, वो महशर के मैदान में होगा जब लोग खड़े होंगे। 50,000 बरस का एक लंबा दिन होगा, लोग खड़े खड़े थक जाएंगे, उनको प्यास लगेगी। हौज़े कौसर महशर के मैदान में एक हौज़ होगा जिसके किनारे प्याले रखे होंगे, इतने प्याले होंगे जितने आसमान के तारे हैं। वो जो असल नहरे कौसर है उसमें से 3 परनाले हैं जो हौज़े कौसर की तरफ पलटा दिए गए हैं। नहरे कौसर का पानी हौज़े कौसर में आएगा। जन्नत में जब जाएंगे तो कौसर पिएंगे, लेकिन जो महशर के मैदान में होंगे उनको मेरे हबीब अपने हाथों से कौसर पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो कौसर की माना यह है कि नहरे कौसर और हौज़े कौसर, लेकिन तफसीर कुर्तबी लिखते हैं, तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं, तफसीर सालबी लिखते हैं कि कौसर बरवजन नाफल, कौसर कसरत की माना में आता है, मुबालगे की माना में आता है। ऐसी चीज जो गिनने में ना आ सके उसे कौसर के। सुभान अल्लाह। देखें, अब मैं इस हजरत को कहता हूं ये फूल गिन ले, कितने इन क्यारों में कितने फूल रखे हैं, ये 15-20 मिनट में गिन लेगा, ठीक है ना। ये चीज गिनने में आ गई, इसको कौसर नहीं कहेंगे। कौसर वो है जो गिनने में ना आए। देखें, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप इस रहीम यार खान के जिले में जितने दरख्त हैं उनके पत्ते गिनकर दिखाओ, भाई सारे जलसे को लगा देते हैं। सारे जलसे वाले गिनते रहे, ढूंढते रहे, गिनते रहे, लेकिन एक दिन आएगा कि ये गिनकर खत्म कर देंगे, इसको भी कौसर नहीं कहेंगे। कौसर वो है जो गिनने में ना आए। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे हबीब इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने आपको खैरे कसीर दे दिया, इतना दे दिया कि जो गिनने वाला गिन न सके, गाने वाला गा न सके, शुमार करने वाला शुमार कर न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब हमने आपको शान दी, इतनी शान दी कि कोई गिनने वाला गिन नहीं सकता। हमने आपको मौजज़े दिए, सारे नबियों के मौजज़े एक तरफ, मेरे नबी का मौजज़े कुरान एक तरफ। इतने मौजज़े दिए कि सबसे ज्यादा कौसर में मौजज़ों की कसरत भी आ गई। मेरे महबूब आपको उम्मत दी, सुभान अल्लाह, कि सारे नबियों की उम्मत एक तरफ, हुजूर की उम्मत उससे भी ज्यादा। बोलो, जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, कितने? 8 दरवाजे जन्नत के होंगे और एक दरवाजा 500 बरस का फासला होगा। आदमी चले ना घोड़े पर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक दरवाजे की जो चौखटें होंगी 500 बरस का फासला होगा और ऐसे 8 दरवाजे होंगे। हबीब अकरम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत आएगी ना, जब दरवाजे खुलेंगे, मेरी उम्मत को इजाजत मिलेगी जन्नत में जाने की। हमें जल्दी तो है ना, बेशक बेशक जल्दी तो है ना हम लोगों को। इतनी भीड़ होगी जन्नत के दरवाजों पर, इतनी भीड़ होगी कि वो दरवाजे की चौखट उखड़ जाएगी। इतनी उम्मत, सारे
नबियों की नहीं होगी जितनी उम्मत मेरे नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अतहार किसी नबी को इतने अहले बैत न मिले जितने मेरे नबी को मिले। इतने आशिक, इतने हुबदार किसी नबी को न मिले जितने मेरे नबी को मिले। इतने गजल, इतने किताब, इतने खिताब, इतने आंसू किसी की मोहब्बत में नहीं गिरे जितने मदीने वाले आका की मोहब्बत में गिरे। इन्ना अतैना कल कौसर। मेरे महबूब तुझे जमाल दिया, ऐसा जमाल दिया कि सारी कायनात का जमाल एक तरफ, हुस्न एक तरफ, हबीब पाक का जमाल इससे भी ज्यादा कमाल दिया। और मेरे नबी को इल्म दिया, अक्ल दिया। हजरत वहाब बिन मुनिब्बा से रिवायत है कि सारी दुनिया के आलिमों का इल्म, सारी दुनिया के दानाओं की दानाई इकट्ठी की जाए एक पलड़े में, अंबिया, औलिया, सुलहा, डॉक्टर, प्रोफेसर, जितने भी दानिश्वर हैं उनकी अक्लो खिरद, उनका इल्म और अमल एक पलड़े में रखा जाए, मेरे नबी का इल्म उससे भी ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब तुझे इतने कमालात दिए कि कोई गिन नहीं सकता। इन्ना अतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। घराना सब घरानों का सरदार, मेरे नबी का किताब जो उन पर नाजिल हुई वो सब किताबों की सरदार। जो कपड़ा मेरे नबी के बदन से लगे वो कपड़ों में बेमिसाल। जिस जगह पर मेरे नबी के कदम लग जाए वो जमीन बेमिसाल। हुजूर का शहर शहरों में बेमिसाल, हुजूर का घर घरों में बेमिसाल, हुजूर का दर सब दरों से बेमिसाल। अजीजान मोहतरम, ये सब इन्ना आतैना कल कौसर है कि बोलते हैं तो ऐसा किसी का बोलना, सुभान अल्लाह। देखते हैं तो ऐसा किसी का देखना नहीं। देखिए, देख तो हम भी रहे हैं ना, लेकिन इतना बड़ा सूरज है, ये शामियाना आ गया तो हम ये सूरज नहीं देख सकते। इतना बड़ा चमकता हुआ सूरज हम नहीं दे सकते। सिर्फ एक कपड़े का पर्दा आ गया, हम सूरज नहीं दे सकते। मेरे नबी का देखना यह है कि अगर आंख उठाते हैं तो मदीने में आने वाले गुलाम को तो देखते हैं, लेकिन नूरवा में बैठे हुए इन आशिकों की महफिल को भी देख। हक हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। आप मुझे बताएं, फरिश्ते आपके साथ हैं या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? कंधों पे, मेरे कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए, आप देख रहे हैं? नहीं देखते नहीं, नजर आ रहे हैं फरिश्ते? नजर नहीं आ रही। आपके अपने कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं, आप देख रहे हैं? नहीं। आप फरिश्तों को नहीं देख सकते। मेरे नबी की यह देखने का कमाल है कि जिन आंखों से इंसानों को देखते हैं उन आंखों से फरिश्तों को देखते हैं, जिन्नात को देखते हैं। जिन आंखों से मखलूक को देखते हैं उन आंखों से खालिक के जलवे भी देखते हैं। हक हक, जिन आंखों से इंसानों के वजूद देखते हैं उन आंखों से रूहों को भी देखते हैं। मेरे अंदर रूह है, आप देख रहे हैं मेरी रूह को? बोले, मेरी रूह आपको नजर आ रही है? मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं और मैदान मोता में जंग चल रही है। मोता है उर्दन के मुल्क में, मदीना मुनव्वरा से हजारों किलोमीटर दूर जंग का मैदान सजा है। हजरत जाफर तैयार के हाथ में झंडा है, मेरे नबी बैठे मदीना में है। फरमाते हैं अभी झंडा जाफर तैयार के हाथ में है। वाह जाफर, तू कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। हुजूर जाफर तैयार को मैदान मोता में अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि अब जाफर जख्मी हुआ, जाफर घोड़े से नीचे आया, जाफर
شہید ہوا. اب جعفر کی روح بدن سے نکلی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کی روح بدن سے نکلی ہے, جنت کی طرف جا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جعفر طیار کی روح فرشتوں کے ساتھ سبز پرندے کی شکل میں جنت میں پرواز کر رہی ہے. میرے آقا فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت جعفر کے روح کو بھی جنت میں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بھائیو, ہم اپنی روح اب خود نہیں دیکھ سکتے, تم میری روح نہیں دیکھ سکتے, میں تمہاری روح نہیں دیکھ سکتا ہوں. میرے نبی کے دیکھنے کا کمال یہ ہے کہ میدان موتا تو دیکھ رہے ہیں, جعفر کی روح اس کے جسم میں بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت جعفر کی روح اڑتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں, جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتی ہوئی جعفر طیار کی روح بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو فرق ہے یا نہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب, ہم نے آپ کو دیکھنے کا کمال دے دیا کہ میرے نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے پیچھے دیکھتے ہیں, جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں, چاند کی چاندنی میں دیکھتے ہیں, اس طرح 29ویں کی اندھاری رات میں بھی میرے آقا اسی طرح دیکھتے ہیں. اگر قریب غلام آ جائے اس کو تو دیکھتے ہیں, ہزاروں کلومیٹر دور اگر کوئی نورواں میں عاشق بیٹھا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے, حضور کی شان سن کر سبحان اللہ کہتا ہے, اس کے ہونٹوں کی آواز میرے آقا گنبد خضرا میں سن لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, میرے آقا آئے شہدائے احد کی مزار پر آئے, شہدائے احد کی مزار پر آئے, حضور نے فرمایا واللہ انی لارا الی حوضی الان, اللہ کی قسم ہے میں یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بولو حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں. بولو کہاں ہے؟ جنت میں. اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے, سدرۃ المنتہا کے پاس. وہ جنت جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے, میرے آقا یہاں سے نظر اٹھا رہے ہیں, فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے میں اپنی حوض کوثر کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور چند قدم آگے چلے گئے اور ہاتھ ایسے اٹھایا جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے. تو صحابہ تو مشتاق تھے نا, حضور کی ہر عطا کو تکنے والے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کی یا رسول اللہ, آج ہم نے دیکھا آپ چند قدم آگے گئے پھر کسی چیز کو پکڑ رہے تھے, یہ کیا ماجرا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سمجھ رہے تھے کہ میں یہاں سرزمین مدینہ پر کھڑا ہوں, میرے ہاتھ یہاں تک ہیں, لیکن تم نے نہیں دیکھا میں نے اسی جگہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جنت کا انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا. میں نے جب ہاتھ لمبا کیا تو وہ جنت کا خوشہ میرے ہاتھوں میں تھا. سبحان اللہ. اگر چاہتا اس خوشے کو میں لے کے یہاں دھرتی پہ لاتا, قیامت تک میری امت کھاتی رہتی لیکن ایک خوشہ ختم نہ ہوتا. عزیزان گرامی, اب دیکھیں قدم سرزمین مدینہ پر اور ہاتھوں کی رسائی جنت تک. ہے نا کمال میرے آقا کا؟ سبحان اللہ. ہمارے سندھ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت پیر روزے دھنی رحمت اللہ علیہ, ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, جمعے کا تقریر فرما رہے تھے جمعے کے دن کی. فرمایا کہ ہمارا مرید ہم سے دور نہیں, کہاں بھی ہو ہم سے دور نہیں. تو ایک مرید تھا رن کچھ کا, رن کچھ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ, رن کچھ انڈیا کا علاقہ ہے, وہ کچھ سندھی میں کہتے ہیں بغل کو, لیکن اس کا علاقے کا نام ہے کچھ.
कच्छ भुज, तो वो मुरीद था कच्छ भुज का। तो उसने सोचा कि हजरत तो बैठे हैं अपने खानकाह पे और फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीद से दूर नहीं, मैं तो कच्छ भुज में बैठा हूं, हजरत का हाथ मेरे तक कैसे पहुंचेगा। वो दिल में सोच रहा था, जुम्मे का खुतबा चल रहा था, हजरत ने ओ कोने में बैठे उस मुरीद को देखा, फरमाया बेटे कच्छ तो ये है, हमारा हाथ तो आगे तक पहुंच रहा। अल्लाह अल्लाह। एक मुरीद आ रहे हजरत रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़ियारत के लिए, उसने रास्ते में देखा कोई सोने का जेवर पड़ा हुआ था, सोने का जेवर। उसने सोचा कि ये रास्ते वाली चीज उठाऊं या ना उठाऊं, शरीयत में उठाना जायज है या नहीं है। अब ये सोच रहा था कि हजरत के पास जा रहा हूं, मसला पूछूंगा, अगर उठाना जायज है तो फिर उठा लूंगा। तो सोचा कि अगर अभी नहीं उठाता, मैं चला गया, ये कोई और उठा लेगा, तो गोबर पड़ा हुआ था, गोबर उससे ढक दिया कि कोई और तो उठा न ले। गोबर से ढका और हजरत की खिदमत में आया, पूछा हजरत एक शरई मसला बताइए। आपने फरमाया बेटा पूछो। कहा कि हजरत रास्ते में कोई चीज नजर आए, उठानी चाहिए या नहीं, शरीयत का मसला सुनाए कि वो उठानी चाहिए या नहीं। हजरत ने फरमाया बेटे उठाना तो नहीं चाहिए, गोबर के नीचे भी रखना नहीं चाहिए। अरे ये तो अल्लाह के वलियों की नजर है, मेरे नबी का कमाल क्या होगा, उनका जमाल क्या होगा, उनकी निगाह का पावर और कमाल क्या होगा। मेरे दोस्तों इन्ना आतोइना कल कौसर, हबीब ये चीजें तो हमने आपको दे दी है। बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि हुजूर के सामने वाले जो दो दांत थे वो मिले हुए नहीं थे, थोड़ी कुशादगी थी। जब हुजूर बोलते तो यूं लगता कि ये नूर की खिड़की है और नूर की किरणें निकल रही हैं। अल्लाह वाह वाह। आप फरमाते हैं कि हुजूर की पेशानी पर जब पसीना आता तो यूं लगता कि जैसे हीरे और मोती चमक रहे। हुजूर जब मजलिस में आते तो दिया दीप बत्ती जलाने की जरूरत न पड़ती, हुजूर के मुखड़े की रोशनी से अंधारे उजालों में बदल जाते। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जब हुजूर महफिल में आते ना तो सहाबा की परछाइयां दीवारों पर नजर आती, हुजूर के मुखड़े से इस तरह नूर की किरणें निकलती। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली शेरे जली से किसी ने पूछा कि ए अली आपने मेरे नबी को देखा, बताओ किस तरह देखा, हुजूर का मुखड़ा कैसा था। तो मौला अली ने कहा वल्लाह लम अरा कबलहू वला बअदहू कत, अल्लाह की कसम है हुजूर जैसा न मैंने पहले देखा न बाद में देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत बर्रा से पूछा गया कि तूने हुजूर का मुखड़ा कैसे देखा, तो हजरत बर्रा कहते हैं कि अन्न शम्स तजरी फी वजह, ऐसे लगता था जैसे सूरज हुजूर के मुखड़े से उभर रहा। सुभान अल्लाह। जब बुलाते हैं तो पत्थर पानी से तैरते हुए आते हैं, बुलाते हैं एक एराबी आते हैं, कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं,